Hello guys, welcome to MBA Pathshala. So guys, this is a session on para completion. So आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? We will solve CAT 2023 का actual para completion question, and this is the new pattern of para completion. So एक तो हमारा होता था old pattern वाले में para जो completion आता था, ठीक है, it was essentially picking up the right ending है ना. So you would be given a paragraph and there would be four options. Any one of those options would be an appropriate ending. So this was the old one, right? Now in the new pattern, what you have, you are given a certain paragraph. Okay, within this paragraph there are four blanks, 1 2 3 4, and there is this one sentence that is also given to you. You have to introduce this sentence in any one of those four blanks according to the situation. So काफी हद तक पैरा कंप्लीशन के अंदर जो स्किल्स आपके लगते हैं वो आपके लॉजिकल कंसिस्टेंसी के like arranging the sentences in a proper order, which is very similar to the sort of skills that we acquired in Parajumbles and Odd One Out, and obviously the skills of critical reasoning. Okay, so all those skills are applicable, right? So इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं देने वाला, ठीक है. व्हाट विल एक्चुअली डू इज वी विल पिक अप द क्वेश्चन कैट 2023, ठीक है. तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एंड you will see for yourself how easy it is for us to solve a question of para completion, right? So you can look at my approach and you can replicate, you can copy the same approach when you solve questions of para completion, right? Okay, so that is the plan for today's session, guys. Now before we go to the questions, okay, so this is an important announcement. So on the occasion of 150k subscribers on YouTube, ठीक है, so guys हमारे हो गए हैं 1,50,000 subscribers on YouTube, which is a big thing, and on this occasion we are giving a discount of 15%. Okay, so that is unprecedented. So 15% का डिस्काउंट है. so आप MBA पाठशाला के किसी भी कोर्स पे परचेज करते हो, ठीक है, तो आप इस डिस्काउंट कोड को यूज कर सकते हो. ओके, एंड वंस यू अप्लाई दिस डिस्काउंट कोड, ओके, YT 150k, okay, you will get a 15% discount. Okay, so you can use this for any courses. Okay, you can use it for Chanakya batch, okay, that you all know about. So if you're planning to prepare for CAT, okay, and you think that you would be joining a structured course, okay, so you can use this code on Chanakya batch as well. So स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, दिस इज एन एक्चुअल कैट 2023 क्वेश्चन. तो मेरे को एक सेंटेंस दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सेंटेंस को रीड करूंगा कि एग्जैक्टली सेंटेंस में बात क्या चल रही है. द फिलोसॉफिकल कट एट वंस कोर बिलीव्स वैल्यूज इन द वे ऑफ लाइफ इज डिफिकल्ट एनफ. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेंटेंस इज सेइंग, क्योंकि अगर मुझे सेंटेंस समझ में आ गया तो ही मैं उसका प्लेसमेंट कर पाऊंगा. दिस फिलोसॉफिकल कट, ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस के जस्ट पहले जो डिस्कशन आया होगा उसमें कोई फिलोसफिकल कट की बात की होगी. व्हेन आई से फिलोसफिकल कट, ओके, इट सिंपली मींस अ फिलोसफिकल आइडियोलॉजी और अ फिलोसफिकल टेक. ठीक है, किसी चीज के ऊपर आपका एक ओपिनियन है ना, फिलोसॉफिकल ओपिनियन. दिस फिलोसॉफिकल कट एट वंस कोर बिलीव्स, आपकी जो कोर बिलीव्स है उसको ये फिलोसफिकल आइडियोलॉजी शायद कुछ हद तक क्वेश्चन कर रही है. ठीक है, सवालों के घेरे में ला रही है, आपकी वैल्यूज को क्वेश्चन कर रही है एंड आपके वे ऑफ लाइफ को क्वेश्चन कर रही है. ठीक है, तो यानी कि इसके जस्ट पहले जो आइडियोलॉजी फिलोसफी की डिस्कस हुई होगी, दैट वुड समवॉट क्वेश्चन और like you know it would basically take that questioning approach to your core beliefs, your values and the way of life. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी नई आइडियोलॉजी को सुनते हैं या एक नए तरह के पैराडाइम को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि हमने जिस तरीके से अपनी लाइफ को अभी तक जिया था शायद वो उतना बेस्ट नहीं था. ठीक है, तो जो भी ये फिलॉसफी है जो इसके पहले आई है, ठीक है, okay, that is a question on one's core beliefs, values and way of life, and it goes on to say this is difficult enough. Okay, so when you say it is difficult enough, okay, it means कि पहले ही ये philosophical cut जो आपकी core beliefs या values या way of life को question करता है, ठीक है, वो पहले ही बहुत difficult है. ठीक है,
Okay, so now let's look at the paragraph. The experience of reading philosophy is often disquieting. Disquieting का मतलब परेशान करने वाली. तो philosophy को read करने का experience बड़ा परेशान करने वाला होता है. When reading philosophy, the values around which one has heretofore, okay, that means till now, organized one's life may come to look provincial, flatly wrong, or even evil. So ऐसा क्यों है कि philosophy पढ़ने पे आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है? Because जब आप philosophy पढ़ते हो, when reading philosophy, the values around which one has till now organized one's life, जिन वैल्यूज के अराउंड आपने अभी तक अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि आपकी पुरानी जो बिलीव्स हैं, ठीक है, वो पुरानी बिलीव्स फिलॉसफी को पढ़ने के बाद आपको लगने लग जाती हैं प्रोविंशियल. प्रोविंशियल का मतलब समथिंग दैट इज वेरी लिमिटेड. हिंदी में बोलते हैं ना संकीर्ण, ठीक है. सो इट्स लाइक व्हेन समथिंग इज प्रोविंशियल, यू आर नॉट समवन हु हैज अ लाइक a more broader approach to look at life. It's very narrow minded, flatly wrong. आपको अपनी पुरानी वाली फिलॉसफी लगने लग जाती है गलत या फिर इवन इविल, ठीक है. ओके, इविल आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो, राइट. सो यहां तक का जो मैसेज है वो ये है कि भाई फिलॉसफी को पढ़ने के बाद आपको अभी तक की अपनी पूरी लाइफ की जो वैल्यूज हैं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन लगे, इविल लगे, रॉन्ग लगे, गलत लगे, राइट. Okay, then you have a blank. When beliefs previously held are as truths are rendered implausible, new beliefs, values, and way of living may be required. Okay, जब पुरानी वाली beliefs जिनको हम सच मान के चलते थे वो implausible हो जाती है. implausible का मतलब difficult to justify. New beliefs, values, and way of living may be required. तो हमें नई values की या नया सोचने का तरीका रिक्वायर्ड होता है, हमें नई बिलीफ चाहिए होती है, हमें नई वैल्यूज चाहिए होती है. क्योंकि ऑब्वियसली पुरानी वाली वैल्यूज तो पुरानी पड़ गई, ठीक है. फिलॉसफी को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगने लग गया, फील होने लग गया कि भाई वो वैल्यूज या वो बिलीफ तो गलत थी, तो अभी तुम्हें नई बिलीफ चाहिए, राइट. ओके, सो अभी यहां पे तो ये सेंटेंस जाता हुआ लग नहीं रहा. ओके, बिकॉज if I look at this first blank, okay, it's a good continuation. Okay, जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हमारी पुरानी बिलीव्स हमें थोड़ी सी गलत लगने लग जाती हैं, प्रोविंशियल लगने लग जाती है, और नई बिलीव्स हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. आगे चलते हैं. What's worse, guys? This is a very very big hint, guys. ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक चीज ऑब्जर्व करना. यहाँ क्या लिखा है? What is worse? ठीक है, what is worse का मैं हिंदी करता हूं. Worse is a comparative word. So जब हम बोलते हैं ना हिंदी में कि यार और इससे भी बुरी बात ये है, ठीक है, और इससे भी ज्यादा बुरी बात ये है. अब ना इस सेंटेंस को सुनो, और इससे भी ज्यादा बुरी बात ये है, तो इसका मतलब इसके जस्ट पहले जो सेंटेंस आया है उसमें आपने किसी ऐसी चीज की बात की जो पहले ही खराब है. नाउ यू आर सेइंग दैट ओके व्हाट इज वर्स. ओके, व्हाट इज वर्स मींस कि इसके जस्ट पहले कुछ गड़बड़ होगी, कुछ चीज ऐसी होगी जो मुश्किल है, परेशान करने वाली है, और फिर आप बोलोगे कि और इससे भी ज्यादा खराब चीज ये है, ठीक है. बिकॉज वर्स गाइज इज अ कंपैरेटिव फॉर्म. ओके, सो व्हेन यू हैव अ कंपैरेटिव फॉर्म दैट मींस you have already mentioned before it something that is already bad, ठीक है, something that is already tough, something that is already putting you in a lot of stress, and then you say कि यार और भी ज्यादा खराब बात ये है, ठीक है. Now this is like a very appropriate location to put that sentence. अभी मैं इसको यहाँ प्लेस करके देखता हूँ. This philosophical cut at one's core beliefs, values and way of life. Okay, so this philosophical cut, भाई कौन सा वाला philosophical cut? ये वाला जो आपने अभी अभी बात की थी इन दोनों सेंटेंसेस में, कि नई लाइक फिलॉसफी को पढ़ते ही आपको पुरानी वाली बिलीव्स तो लगने लग जाती हैं गलत, वो लगने लग जाती हैं आपको इविल, वो लगने लग जाती हैं आपको बहुत ज्यादा प्रोविंशियल, दैट इज नैरो माइंडेड, शॉर्ट साइटेड, and you need a new way of life. So this is like a new philosophical take or a new philosophical cut. Okay, philosophical cut means कि आप अपनी पुराने वाले philosophical beliefs को ये चीज सवालों के घेरे में ला रही है. It's a philosophical cut at like what you already thought was correct. So this philosophical cut is justified क्योंकि नई फिलॉसफी अब आपको अपनानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, ठीक है, और पुरानी वाली फिलॉसफी अब आपको गलत साबित हो गई, बिकॉज लाइक यू हैव बीन रीडिंग फिलॉसफी, सो नाउ यू नो दैट माय ओल्ड थिंकिंग वाज रॉन्ग. सो दिस फिलॉसफिकल कट एट वंस कोर बिलीव्स, वैल्यूज एंड वे ऑफ लाइफ इज डिफिकल्ट एनफ. तो भाई पहले ही अपनी फिलॉसफी को क्वेश्चन करने वाला जो ये पूरा काम था, ये पहले ही बहुत मुश्किल था.
और भी ज्यादा मुश्किल ये है, व्हाट इज वर्स, ओके सो इट वाज डिफिकल्ट एनफ गाइस, लुक एट दिस, व्हेन यू से डिफिकल्ट एनफ के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें आप ये बात करोगे कि और भी ज्यादा परेशानी वाली चीज ये है, सो ये तो मुश्किल है, डिफिकल्ट, ओके सो डिफिकल्ट इज लाइक दी पॉजिटिव फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, व्हाट इज इवन मोर डिफिकल्ट, okay, instead of saying what is even more difficult, you have said what is worse. What is worse? Philosophers admonish each other to remain unsuited until such time as defensible new answer is revealed or constructed. Okay, और इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि philosophers एक दूसरे को ही admonish करते रहते हैं कि आपको किसी भी तरह के नए बिलीफ के साथ अटैच नहीं होना until कोई नया आंसर हमें नहीं मिल जाता। Okay, now I don't really need to read the entire thing because now I am 100% sure when I look at this part, what is worse, philosophers admonish each other, ये और भी ज्यादा खराब बात है कि philosophers एक दूसरे को ही admonish करते हैं। admonish का मतलब, admonish technically means to give a warning, okay, but then it can also be used in the sense of criticizing everyone, like they warn and they question, they criticize, right? So they admonish, okay, so what's worse, philosophers admonish each other, okay, so that means इसके पहले what is actually tough, what is difficult, why hoga, so this is the perfect location, okay, so second option would be placed here, okay, so option second, that is C. Moving ahead, okay, again वही सेम अप्रोच, सेंटेंस को रीड करते हैं, द डिस्कवरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन आर्कियोलॉजिकल सिमिलरिटीज बिटवीन पेलियोलिथिक पीपल ऑफ चाइना, जापान एंड अमेरिकास। द डिस्कवरी, ओके सो दिस इज अ वेरी बिग एंड गाइस, द डिस्कवरी का मतलब किसी स्पेसिफिक डिस्कवरी की इसके पहले बात हुई है, ठीक है, और वो जो डिस्कवरी है वो आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज शो कर रही है चाइना, जापान एंड अमेरिका के पीपल के बीच में, है ना। तो मैं अब ऐसा सेंटेंस सर्च करूंगा जहां पे कोई नई चीज पता लगी हो, बिकॉज उसको फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस में बोल सकता हूं दिस डिस्कवरी और द डिस्कवरी। द डिस्कवरी मीन्स इट्स अ स्पेसिफिक डिस्कवरी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। ओके, लुक एट दिस। The researchers also uncovered an unexpected genetic link between Native Americans and Japanese people. So researchers ने uncover किया, मतलब expose किया एक unexpected link, एक unexpected genetic link between Native Americans and Japanese people. ठीक है, तो researchers ने कोई genetic link पता लगाया होगा Native Americans और Japanese people के बीच में। जेनेटिक लिंक का आई थिंक शायद मीनिंग आप समझ गए होगे, दैट दे हैव सम सिमिलैरिटी ऑफ जीन्स, ओके, दैट मीन्स कि उनका जो ओरिजिन है कुछ हद तक शायद वो सिमिलर रहा होगा, क्योंकि तभी उनके बीच में जेनेटिक्स का एक सिमिलैरिटी आ रहा है, देयर इज जेनेटिक लिंक, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड in Africa and then they migrated to different places, so people from different locations of the world have some sort of genetic link, right? तो इन लोगों ने genetic link uncover किया है नेटिव अमेरिकन और जापानीज पीपल के बीच में। ड्यूरिंग द डीग्लेशिएशन पीरियड, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो दैट इज डीग्लेशिएशन। ड्यूरिंग द डीग्लेशिएशन पीरियड अनदर ग्रुप ब्रांच्ड आउट फ्रॉम नॉर्दर्न कोस्टल चाइना एंड ट्रैवल टू जापान। सो इस पीरियड के टाइम पे एक अनदर ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप नॉर्थ कोस्टल चाइना से ब्रांच आउट हुआ और वो जापान तक ट्रैवल करके गया, ठीक है। वी वर सरप्राइज टू फाइंड दैट दिस एंसेस्ट्रल सोर्स, ओके गाइस, दिस एंसेस्ट्रल सोर्स किसको रेफर कर रहा है, इस वाले को, है ना, दिस अनदर ग्रुप दैट इज ब्रांचिंग आउट फ्रॉम चाइना। सो भाई दिस एंसेस्ट्रल ग्रुप अगर इसको रेफर कर रहा है अनदर ग्रुप, ओके, सो ये एंसेस्ट्रल सोर्स है, तो इसका मतलब यहां तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि इस दिस के लिए जो जस्टिफिकेशन है वो मेरे को यहां पे मिल गया, राइट, ठीक है। दिस एंसेस्ट्रल सोर्स इज सरप्राइज टू फाइंड दैट दिस एंसेस्ट्रल सोर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू जापानीज जीन पूल। सो ये जो अनदर ग्रुप जिसकी आपने बात की है ना, जो कि चाइना से आया था, इस ग्रुप ने भी, जो कि एंसेस्ट्रल सोर्स है, जापानीज जीन पूल में कंट्रीब्यूट किया है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जापान के कंटेक्स्ट में बात चल रही है, और आप देख रहे हो कि जापान के लोगों में जो जेनेटिक्स है उसके बेसिकली सोर्सेस कहां से हैं, वेयर इज द कोरिलेशन, ओके। सो वन दे हैव टॉक्ड अबाउट नेटिव अमेरिकन्स एंड देन नाउ दे से कि ये चाइना से जो ग्रुप आया था उसके साथ भी इनका कोई एंसेस्ट्रल लिंक निकला है। वी आर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट दिस एंसेस्ट्रल सोर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू जापानीज जीन पूल, स्पेशली द इंडिजिनस इनस, सेज ली। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ना नोट करवाता हूं। देखो ऑथर क्या बोल रहा है, वी वर सरप्राइज टू फाइंड।
सरप्राइज टू फाइंड दैट दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब कोई चीज पहली बार होती है तभी हम बोलते हैं वी आर सरप्राइज्ड, क्योंकि अगर वो चीज आपको पहले से ही पता थी, यू वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, यू एक्सपेक्टेड इट। ओके, दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी न्यू। सो अभी अगर उन लोगों को ये सरप्राइज हुआ कि इस एंसेस्ट्रल सोर्स ने जीन पूल में कंट्रीब्यूट किया है, तो आप समझ सकते हो कि यार ये चीज अगर पहली बार हो रही है तो दिस इज अ न्यू डिस्कवरी गाइस, दिस इज अ न्यू डिस्कवरी, राइट। और देखो, इन क्वेश्चंस में ना कोई ट्रिक नहीं होती। what you have to really understand is that when you do that reading part, it has to be it has to be very careful. Okay, you have to be very observant, and then whatever words you are observing, whatever sentences you are reading, okay, just try to analyze कि यार इसमें exactly चल क्या रहा है ना, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे अगर भाई वो सरप्राइज हो रहे हैं ये पता लगाने पे कि इस एंसेस्ट्रल सोर्स ने भी जापान के जीन पूल में कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज अ न्यू डिस्कवरी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं होता तो वो लोग सरप्राइज भी नहीं होते। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पे एक ब्लैंक आ रहा है, थर्ड वाला। नाउ आई कैन पुट दिस, द डिस्कवरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन द आर्कोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन पैलियोलिथिक पीपल ऑफ चाइना। तो भाई वो ग्रुप कहां से आया था? चाइना से। उस ग्रुप का कोरिलेशन किसके जेनेटिक्स के साथ निकला? जापान के लोगों के साथ। और जापान के लोगों का पहले से ही जेनेटिक लिंक किन के साथ है? अमेरिकन के साथ। ठीक है ना? ओके, अभी कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो डिस्कवरी थी जो अभी आप लोगों ने डिस्कस की, हम लोगों ने डिस्कस की, मतलब ठीक है, ये वाली, okay, that this ancestral source is also contributing to Japanese gene pool. This was a new thing, and obviously it can explain the similarity between the Japanese ka genetics and the China walo ka genetics, right? Okay, I hope you are able to understand what I'm trying to say here. Okay, so ये वाला जो part था, we were surprised to find this is the first time new discovery. So भाई बहुत conveniently you can place it here. The discovery helps to explain the archaeological similarities between the Paleolithic people of China, Japan and America. So this is the location where the sentence will get placed. Okay, और मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा श्योर शॉट है दैट कि मुझे अब आगे जाके चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन रीड द एंटायर पैराग्राफ एंड लाइक try to look for like other aspects also, but I don't think it's required. Okay, though you can do it. Okay, so this is how I can say that this sentence fits in the option third, which is option, which is D in the answer, right? Okay, so I hope ये समझ में आया होगा। Finally, what we can say is that what is paragraph completion all about? Finally, okay, one, it is about very careful reading. Second, it's about your ability to analyze the text, to read between the lines, to be very critical in the way you analyze and read those terms, those words. ठीक है, और वही सेम हिंट्स जो आपको पैराजिम्बल और ऑड वन आउट में मदद किए थे। ठीक है, अभी देखो मैंने वहां पे क्या नोटिस किया, द डिस्कवरी, द इज डेफिनेट आर्टिकल प्लस डिस्कवरी विच इज अ कॉमन नाउन। तो मैं उसके पहले ट्रेस करूंगा कि इसके पहले उसका मेंशन आया होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिस्कवरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिस्कवरी है। ओके, सो दिस इज द सेम sort of link or hint that we used in paragimbles also, if you remember, right? So the sort of connections that you make would use more or less the same sort of logic that we learned in paragimbles. We also learned some of those concepts in odd one out. ठीक है, और यहाँ पे लिंक करना है, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से वो सारे के सारे हिंट्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर यू, बोथ वर CAT 2023 क्वेश्चंस। ओके, बिफोर वी एंड दिस सेशन, सो गाइस दिस इज चाणक्य बैच, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो मैंने जो भी आपको कोड बताया था उस कोड को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये बैच चलने वाला 31 मार्च 2025 तक, एंड इन दिस बैच यू कैन गेट अ डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कोड। दिस बैच कवर्स almost everything. Okay, so you have CAT, you have OMATs. ठीक है, to give you a brief, what are the things that we're offering in this course? Okay, so you have expert faculty, obviously. You have regular sessions 6 days a week. Recorded sessions के आपको facility मिलती है, मतलब आप live sessions attend करते हो, उसके बाद recordings भी आपके पास available रहती है. You have the printed booklets.
Okay, so you will get those booklets delivered to your to your doorstep. Okay, so that is also going to be there. Mock test इसमें included है, ठीक है, आपके जितने भी mocks हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है. OMATs इसमें included है, ठीक है, OMATs के sectional test इसमें included है, CAT के sectional test इसमें included है, ठीक है. तो whatever sectionals you have like on the app you will have sectional test, ठीक है, तो वो भी इसका part है. So all in all we can say that there's nothing else that is required for your CAT preparation, for OMAT preparation once you get this batch. Okay, so that's it for today, and I'm going to see you in the next session. Bye bye. Take care.